इस महामारी के चलते आप सभी सेफ होंगे, सभी घर पे होंगे और सभी खुशहाल होंगे। आज हमारे इस बहुत ही स्पेशल शो में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं जिनका नाम है मिस्टर लल्लन देव। जी हाँ, इन्हें एलन देव भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक योगा गुरु हैं, बहुत ही कामयाब योगा गुरु हैं और साथ ही ये एक मेटलर्जी इंजीनियर भी हैं। और इन्हीं के साथ हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान हमारे शो में जुड़ी हैं। जी हाँ, उनसे हम कुछ दिन पहले ही मिल चुके हैं। उनका नाम है अर्चना गुप्ता जी। अर्चना गुप्ता जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो में। थैंक यू। जी हाँ, जैसा कि मैंने सभी को बताया था, ये एक टीचर हैं, ब्लॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये एक साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत माँ भी है। तो सबसे पहले गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका भी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ सबसे पहले मैं गुरुजी आपसे तो मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन आपसे पहले मैं आपकी स्टूडेंट के पास जाना चाहूंगी। और अर्चना जी, आपसे आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, how did you meet Guruji? Like I have already told the audiences that he is a yoga guru, he is a metallurgy engineer. So how did you meet him? When did you meet him? And how did he change your life? Okay, so as you know, I'm from Shimla, India, and I live in the US. And as I've previously mentioned, I've battled depression for 15 long years of my life. Yeah. And I had no motivation, no hope, no aim in life. And all I wanted to do was to die someday and get rid of all this misery. And it took me 15 years, moreover, because I did not find a good doctor and good medicines. So while I was going through all this, I went to meet my family back in India around about 4 years back. I went to Rudrapur, Uttarakhand. My sister lives there, and my parents had come to meet me there. So my mom, she introduced me to Guruji. They had joined his yoga, and they were benefiting from it. So I went to him. I was almost in tears, and he gave me courage. He gave me hope, and he taught me yoga. And specifically, I benefited from pranayama. He helped me to regain my confidence. And with the passage of time, like since 4 years, I'm stable now. I do not have any symptoms of depression. And I'm a depression survivor right here before you. And today I'm a motivator. These 15 years have been an on-the-job experience for me. I've seen depression so closely that now I know the inside out of it. So along with yoga, I also started meditation and switched to a very healthy lifestyle, changed my eating habits and my overall living style. Life changed. Yes. And then I started my blog named Inspiration. I started a YouTube channel, Archana Gupta Motivation, and recently started a podcast, Health, Happiness, and Positivity. So these are basically different platforms, and the message is the same. It's an insight into my own lifestyle, and whatever I have benefited from, I want to share with the world. And also I started Uplift International, my motivational group on Facebook, again to spread positivity. And recently I started Uplift Online Helpline team. It's a team of professionals with different expertise who have come forward to help people. So like I have doctors, lawyers, police officers, journalists, mental health counselors, then professors, mentors, career counselors, and things like that. And so Guruji has also joined me in this. He's also working as a volunteer, and we work together as a team. And every day I make many people have a teleconference with him. So anybody who's having any kind of health issue, who needs help and wants to switch to yoga and naturopathy. So I just refer them to, I call him uncle. He's like a father to me.
He's like God sent Of in my course. life. Yes. Yeah. And he's also an engineer. So he has Yeah. a broader perspective of things. He's also into spirituality. So whatever he explains, it is on a scientific basis. So Okay. he's a blessing to mankind. And we are blessed to have him here. And I really want to thank him with all my heart. Great. Such a beautiful story you have, Archana ji, and he has surely done such a beautiful work. And right now, I am feeling so blessed to actually talk to him, and I am going to have this whole show with him where I'm going to ask so many questions. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए सबसे पहले सर आपका गुरुजी। तो अभी जैसे अर्चना जी ने इतनी सारी चीजें बताई आपके बारे में और इतना कुछ बताया कि आप ऊपर वाले के भेजे हुए एक फरिश्ते हैं उनकी जिंदगी में, आपने उनकी जिंदगी इस तरीके से चेंज कर दी। तो ये सारी बातें तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि आप योगा से कैसे जुड़े, कब जुड़े, और योग में ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया? अर्चना जी को मैं बहुत बहुत अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है और दिल से की है। जो इन्होंने पाया है वही इन्होंने बताया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस की अपनी भावनाओं को जी। और इनके जीवन में खुशियां आए ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, बराबर करते हैं। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम दिल से अपनी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ कि सभी के घर में खुशियां आए, अलग हर घर में जगे। ये मेरा आंदोलन कहें या जो कहें, मैं चाहता हूं कि हर घर में खुशियां आए। उसी में से एक अर्चना जी हैं जो वहां तक पहुंच गई। हमारा प्रयास करना मेरा काम है और इस बीच में अर्चना जी की मुलाकात हुई और उनके घर में इन्होंने अपनी खुशियां लेकर के पहुंच गई और आज इनकी घर खुशियों से भरी पड़ी है जी। और इससे मैं बहुत आनंदित जी। दूसरा, मैं योग से जुड़ा जब मैं अपने मिडिल स्कूल अपने गांव से निकला और जब मैं हाई स्कूल गया तो सबसे पहले मैं संघ से जुड़ा, आरएसएस से जुड़ा। वहाँ पहली बार हमें शाखा में जाने का मौका मिला और वहाँ ये संस्कार हमें मिला कि राष्ट्र के लिए जिया जाए, पूरी विश्व समुदाय के लिए जिया जाए। अगर हम उसके लिए नहीं जी सकते हैं तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ये संस्कार हमें वहां मिला, ये जो फीलिंग्स है वो हमें वहां मिला और उसी के तहत मैं अपने संघ में अपने डेली शाखा में जाता था और वहाँ एक टीमिंग का एक भाव हमारे अंदर में उत्पन्न हुई और राष्ट्र के प्रति मैं जुड़ता चला गया। राष्ट्र से मैं कनेक्ट हो गया। नेशन के लिए मैं जीता रहा हूँ और आज भी जीता हूँ, उसी के लिए जीता हूँ। सपन भी देखता हूँ तो राष्ट्र के लिए देखता हूँ। और इसी दरमियान जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया संघ से और वहां से निकला तो मैं अपने सर्विस में आया और सर्विस में आने के बाद उसी समय स्वामी रामदेव जी का अभियान बहुत तेज गति से चल रहा था। 2002-03 की बात है और उसी समय पहली बार हमने उनको टीवी पे देखा तो पहली बार मुझे भी लगा कि जैसे और आम योगी होते हैं कि ये जनता को ठग रहे हैं, क्योंकि वो मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था तो कोई उठ करके बोल रहा है कि हमारे घुटने का दर्द ठीक हो गया, तो कोई किसी चीज का रोग ठीक हो गया। तो मुझे भी लगा कि ये ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ दिन तो मुझे भी ऐसा ही लगा, बट क्योंकि मैं आसन तो करता था, आसन बहुत कुछ करता था, बट हमें भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम था। फिजिकल प्रॉब्लम भी था और मेरे को मेंटल प्रॉब्लम भी था। मेंटल प्रॉब्लम यह था कि मुझे गुस्सा बहुत आता था जी, और फिजिकल प्रॉब्लम यह था कि मैं एलर्जेटिक था, मुझे अस्थमा था
कंस्टिपेशन का बहुत भयंकर प्रॉब्लम था मेरे को, जिसको भयंकर प्रॉब्लम कहते हैं। और उसके बाद मैं पाइल्स से भी ग्रसित हो गया था। तो जिंदगी में थोड़ा सा मेरा उत्साह जो था ना वो कम होने लगा था। जिंदगी में उमंग नहीं थी, जिंदगी को मैं सही ढंग से जी नहीं रहा था। जहां मैं जाना चाह रहा था, प्रोग्रेस जो मैं करना चाह रहा था वो भी नहीं हो पा रहा था। उसी बीच में स्वामी रामदेव जी से हमें मुलाकात हो गई टीवी पे। तो मैं सोचा कि इतना लोग कह रहे हैं तो जो ये कह रहे हैं वो करके देखें, मैं खुद करके देखूं। तो मैंने प्राणायाम पे पहली बार फोकस किया अपनी जिंदगी में। स्वामी रामदेव जी जैसे जैसे बता रहे थे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो मैंने करना शुरू किया। तो उस समय जाड़े का मौसम था और मेरे को क्या था, उस समय जब मैं सुबह उठता था तो कम से कम 100 छींकें, कम से कम 100 छींकें आती थी और आंख से पानी, नाक से पानी। सुबह जब मैं उठता था तो जाड़े का मौसम हमें लगता था ना कि ये कितना जल्दी कट जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। डॉक्टर कोई भी दवा देता था, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, सारा मेडिसिन लेकर के मैं थक गया जी। रजनी जी, मैं 7 दिन के अंदर में मेरे अंदर में मतलब वो जो सांस की जो प्रॉब्लम थी ना वो कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। विदिन 7 डेज सुबह उठ करके वो जो छींक आती थी वो गायब हो गया। और ये हमारे लिए मिरेकल था जी। और मैं जिंदगी से बहुत निराश था। तो मैंने इसको मैं समझा कि अगर मेरे जिंदगी में इतना जल्दी चेंज आ सकता है तो किसी और की भी जिंदगी में चेंज लाया जा सकता है जी। तो वो भाव तो था ही, सेवा करने का भाव हमारे अंदर था ही। तो इस योग को मैं डीपली पकड़ लिया जी। और फिर इस योग से जुड़ने के लिए हम हरिद्वार पहुंच गए। बाबा रामदेव जी का जब सबसे पहला आह्वान हुआ था योग शिक्षक बनने का, तो वो फर्स्ट बैच में मैं गया था वहां। और तब से मैं योग से जुड़ा हुआ हूं। और उन्होंने 3 संकल्प दिलवाया था हमें जी। जब दीक्षांत समारोह होता है ना किसी भी तो दीक्षांत समारोह में इनका हवन की व्यवस्था की गई थी और उसमें हम लोगों को 3 संकल्प करवाया गया था हवन कुंड के सामने जी। एक पहला, आप जिस भी फील्ड में हो, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां आपको एक्सेलेंसी के रूप में काम करना है। एक्सेलेंट, और उससे नीचे में नहीं चलेगा। आप अपने ग्रुप में जहां भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे साथ पत्रकार भी थे, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थे उस ग्रुप में। 1200 लोग हम लोगों को सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुई थी। उन 1200 में अच्छे लोग अच्छे जगह से भी आए हुए थे, कुछ यूके से आए हुए थे, कुछ दुबई से भी आए हुए थे। तो उनमें संकल्प करवाया गया कि आप जहां भी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, एक्सेलेंसी के साथ काम करना है, एक जी। दूसरा, आप अपने राष्ट्र के साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में आप दगाबाजी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे अपने राष्ट्र के साथ। और तीसरा, आप अपनी जिंदगी में से बहुमूल्य समय में से 24 घंटा में से 2 घंटा समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में आपको लगाना है। और ये तब से मैं ये तीनों संकल्प को अपने हृदय में धारण करके और इसको मैं निभा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। गुरुजी, इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि योगा से जुड़ने के बाद आपकी जो जिंदगी बदली, वो आपकी पहले की जिंदगी से कितनी अलग थी? अभी बहुत अलग हो गई है। मैं हाईली क्रिएटिव हो गया हूँ, हाईली पॉजिटिव हो गया हूँ, हाईली एनर्जेटिक हो गया हूँ। I have now retired, but still I have too demand in our market. अच्छा। Too much demand. अच्छा। Due to creativity, due to positivity. जी। और हमारे खास करके हमारी फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। हमारे बच्चे बहुत डरते थे मेरे से क्योंकि बहुत एग्रेसिव था,
डांटता जी। था, मारता पीटता था, बहुत तरह की चीजें थी और उससे मैं जी। एकदम बाहर आ गया। अच्छा। आज एकदम खुशनुमा हमारा फैमिली लाइफ है, खुशनुमा सोशल लाइफ है, खुशनुमा प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ की तो बात ही अलग। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। आई एम हाईली ब्लेस्ड और मैं इस सारा क्रेडिट स्वामी रामदेव जी को देता हूँ। सेकंड क्रेडिट जी। अगर किसी को देना है तो हमारे परिवार को देना है, जिसमें हमारी धर्म पत्नी है जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है, हमारे जी। बच्चों ने बहुत ज्यादा हमें सहयोग किया है, अप्रिशिएट किया है। जी। सबसे सबसे ज्यादा अगर किसी ने त्याग किए तो हमारी छोटी वाली बेटी है। जिस समय मैं गया था योगा का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, उस समय अकेले क्वार्टर में रहती थी जी। और वो बोली कि पापा आप जाओ, ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। क्या बात है। फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये तो है। यस, बहुत बड़ा है। जी। फैमिली सपोर्ट ना हो तो आप बहुत कुछ आगे नहीं कर सकते। जी। अपनी जी। जिंदगी जी सकते हैं बट सोसाइटी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको फैमिली लाइफ का सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ गुरुजी मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप औरों को भी योगा सिखाते हैं। आपने और बहुत लोगों को योगा सिखाया है, बहुत लोगों की बीमारियों को दूर भगाया है। तो आपने दूसरों को योगा सिखाना कब से शुरू किया? जब से मैं ये संकल्प लेके आया उसके दूसरे दिन से, जैसे ही मैं पहुंचा और अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और अनवरत चल रहा है। जी। किसी इमरजेंसी में मैं कहीं बिजी हो गया हो तो छूटा हो, बाकी अनवरत चल रहा है, विदाउट ब्रेक, नॉट ए सिंगल डे ब्रेक। तो आप लगातार तब से योगा सिखाते आ रहे हैं? 2005 से। 2005 से, और ये 2020 चल रहा है। क्या बात है। चलिए, इसी के साथ आप मुझे बताइए कि जितने भी लोगों को आपने योगा सिखाया है, कितने लोगों को उसमें फायदा हुआ है? लाइक 100% फायदा? अगर आप गिनती में देखें तो हजारों की संख्या में है ये। जी। लेकिन कुछ इसमें से स्पेशल, जैसे मैं, तो जिसको मैं एक लाइव अचीवमेंट मानता हूँ और एक हमारे साथ में बैठी हुई है जी। और एक सबसे इसके दूसरा जो है जिसको हम आज शेयर करना, अगर आप अलाउ करें तो मैं बताऊं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट फैमिली बिलोंग्स टू श्रीलंका एंड वो फैमिली लंदन में रहते हैं। वो सिविल इंजीनियर हैं और यहाँ राजस्थान में जब 4 लेन का एक प्रोजेक्ट आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, उस समय वो होलसेल इंचार्ज थे, एक विदेशी कंपनी थी। तो वो हमारे योगा क्लास को उन्होंने अटेंड किया। तो 10-15 दिन के बाद उन्होंने बताया, उनके चेहरे पे मैं देखा कि थोड़ा सा तनाव है, टेंशन है। तो मैंने पूछा, तो पहले तो वो नहीं बताना चाह रहे थे, बट मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया उनको, तो उन्होंने पूरी अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। उनकी मैडम को लीवर स्वेलिंग हो जाती है ना, बाद में वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनको भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा था एंड शी वाज लिविंग एट दैट टाइम लंदन। तो वहां डायग्नोस हुआ था और उन्हें ऑपरेट करने का उन्होंने सुझाव दिया। फॉर दैट ही वाज इन टेंशन। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि 15-20 दिन वो हमारे से अटैच हो चुके थे जी, अगर मेरे ऊपर आपको बिलीव है तो आप अपने श्रीमती जी को अगर यहाँ बुला सकते हैं, देन इट इज क्यूरेबल। क्योंकि मैं ये मैं वहां देख करके आया था शिविर में, जब मैं गया था हरिद्वार। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने जो उन्होंने एक्सप्रेस किया था बाबा के पास, बाबा के सामने, कि मेरे को ये प्रॉब्लम था और ये मेरा ठीक हो गया, प्राणायाम से ठीक हो गया। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोला कि आप उनको बुलाइए और ये इस डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। जी। बोले ऐसा हो सकता है क्या? हम कि यस, आपको केवल क्या करना है, उन्हें वहां से यहाँ बुलाना है और 20 दिन का समय चाहिए मेरे को। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, देन यू कॉल इट। Within 10 days she was here. जी।
इंडिया से ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग लंदन जाते हैं, और वो लंदन से ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया पहुंच गए, और वो भी राजस्थान में, और वो भी जी अनसर्टिफाइड डॉक्टर के पास। जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 23 दिन में उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या बात है, 23 दिन में? वो कुछ डाइट नहीं ले पा रही थी, केवल लिक्विड उनको दिया जा रहा था, और वो 23वां दिन अपने नॉर्मल डाइट में आ गई, नॉर्मल डाइट जी। विद इन 23 डेज। क्या बात है। और वो फैमिली आज एक ब्रांड एम्बेसडर है, श्रीलंका में योग का प्रचार कर रहे हैं, एंड ही इज फुल्ली कनेक्टेड विथ यू। क्या बात है। फिर उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम वहां रखवाया लंदन में, मेरा योग क्लास का। जी। I have taken yoga class at London also, and in that शिविर there are 50% doctors from London, अच्छा। and they have interviewed me at my hotel. How क्या you बात have cured it? How you have cured it? क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने योगा के जरिए डिप्रेशन भी क्योर किया है, पैरालिसिस भी क्योर किया है, और सर्वाइकल पेन, ब्रेन ट्यूमर, ये सब भी क्योर किया है। तो इन बीमारियों का कोई किस्सा अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को और हमें बताना चाहें। जैसे ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी इंसान को पता चले कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, तो फिर शायद उसकी सारी उम्मीदें जिंदगी से खत्म हो जाएं। लेकिन आपने ऐसी बीमारी को भी, जी हाँ, आपने ऐसी बीमारी को भी दूर किया है। तो ऐसी बीमारियों के बारे में और इन सब चीजों के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, आपको इस बॉडी को लेकर के ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। जी। ये बॉडी भी है जो एक इंजन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज ए टोटली ए इंजन डिजाइन्ड बाय द सुप्रीम पावर, एंड all science is still involved to know this body. Still there is so sacred under this body. They are still in the learning phase. जी जी। Okay. जी। So what you have to do? Any problem in our body, in any part, that means some toxin is collected in that area. बिल्कुल बिल्कुल। So any disease caused by the toxin. So what you have to do to remove the toxin, and to removal of this toxin there are so many pathy. You can remove by the Shalya Chikitsa, remove physically, or you can remove it slowly from this body with the Ayurveda medicine, with the homeopathic, and there is also way of the removing this toxin which is helped by the yoga-pathy. So I am applying the yoga-pathy only. जी। तो योगा में क्या है कि इस पूरी बॉडी में अगर आप कंटिन्यू कुछ चीजें ले रही हैं, तो वो है एयर, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। योग विज्ञान में हम प्राणवायु कहते हैं। इसके बगैर आप 5 मिनट अगर आपके अंदर में ये एयर नहीं जाए, तो आपकी सारी दवा फेल है। इसलिए मैं बार बार ये स्लोगन देता हूं कि हवा से बड़ी कोई दवा नहीं। हवा गई तो सारी दवा फेल है। जी। ट्रक की ट्रक मेडिसिन विल नॉट यूजफुल फॉर यू। जी। तो दवा भी तभी काम करती है जब हवा चल रही है। हवा बंद हो गई तो सारी दवा बंद। जी। तो मैं हवा पे फोकस करता हूँ। प्राणायाम के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके थ्रू आप बॉडी के किसी पार्ट से भी टॉक्सिन को रिमूव कर सकते हैं। जी।
तो बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव जी ने उनमें से 8 प्राणायाम को एक आम इंसान के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया। देयर आर सो मेनी प्राणायाम इन आवर एंशिएंट बुक्स, एंशिएंट थ्योरी, देयर आर सो मेनी प्राणायाम्स in which they have selected 8 pranayams. Okay, जी. And these 8 pranayams is totally efficient to remove all toxins from our body. जी. So when you are doing Brahmari pranayam, your brain gets vibration. So any toxins is in our brain, it will, due to vibration, it will come out slowly and slowly as a liquid, and it will come out through your urine, through your stool. जी. गुरु जी, अगर आप थोड़ा सा करके दिखा दें इस प्राणायाम को. These 3 fingers will be at the eyes and 4th fingers will be at the forehead and must gap ½ inch. Here is the points of the pineal glands. So when you will press here, your pineal glands will be active. This is called Ajna Chakra. This is called pineal glands. अच्छा. और भगवान शंकर जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, वो उनका यही जो तीसरा नेत्र है वो उनका जगा हुआ था, इसलिए वो भविष्यवक्ता थे, भूत के भी वक्ता थे और वर्तमान के भी वक्ता जी. So you have to activate this chakra. This is called Ajna Chakra. Okay. So when you will do vibration in your body like that, so when you will do, actually it is a pronunciation of ma. So when you will do in the long duration, that vibration will remove all impurities from your brain. जी. So it will create positiveness, it will create happiness in your mind, the formatting of your mind, all confusions, all doubts will remove from your mind. सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिन्स जितने भी हैं, जितने भी खराब चीजें जो भी आपके दिमाग में चलती हैं, वो सब हट जाएंगी. यस, विचार एक बहुत बड़ा टॉक्सिन है. बिल्कुल बिल्कुल. जिसको हम कुविचार कहते हैं. जी. नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है. जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आता है तो आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर पॉजिटिवनेस अगर है आपके दिमाग में तो आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय तत्व तो बढ़ जाएगा. जी. और अगर हमारी बॉडी की पीएच थोड़ा सा हाई होनी चाहिए. 7 जो टोटल पीएच है उससे थोड़ा हाई है तो आप एकदम स्वस्थ हैं. अच्छा. अगर आपकी पीएच एसिडिक में चला गया है, इसका मतलब आपकी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आता है, ये इंडिकेशन है. अच्छा. सो यू चेक योर पसीना.
आपकी बॉडी का जो पसीना निकल रहा है उसका पीएच चेक कर लें और अपना माइंड को सही कर लें। अगर आपका एसिडिक आ रहा है पसीना तो यू बी अलर्ट कि आपको पॉजिटिविटी की जरूरत है। यस। जी जी जी। चलिए गुरुजी, इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल की जिंदगी में इतनी ज्यादा भागा दौड़ी है, इतनी ज्यादा हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए उतावला रहता है। हर किसी को जिंदगी में भागना है। क्यों? क्योंकि जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है और इस भागने के चक्कर में ये सारी चीजें इंसान के दिमाग को बहुत ज्यादा असर करती हैं। जैसे कि आपने बताया नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को आज के टाइम में डिप्रेशन होना बहुत ही आम बात हो गई है आज के समय में। तो योगा डिप्रेशन में कैसे मदद करता है, आप हमारे ऑडियंसेस को ये बताएं। देखिए बहुत सिंपल है। जिंदगी में समृद्धि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। समृद्धि का कोई बाईपास रूट नहीं है जी। जहां समृद्धि नहीं है, जहां रिद्धि नहीं है, जहां सिद्धि नहीं है, वहां अधर्म होगा। धर्म को अगर कायम करना है तो समृद्धि बहुत जरूरी है। जहां अर्थ नहीं है वहां अनर्थ होता है। सारे अनर्थ आज दुनिया में किसी के साथ हो रहा है तो वो गरीबों के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं है, उसके पास लक्ष्मी का पावर नहीं है जी। तो अर्थ तो बहुत जरूरी है, बट वो अर्थ कैसा होना चाहिए, रूट कैसा होना चाहिए, एकदम प्योर रूट से आना चाहिए। बिल्कुल। रेस लगानी है, अपने लक्ष्य पे केवल नजर रखनी है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपके साथ बगल में दौड़ रहा है उसको लंगी नहीं मारना है जी। अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। और अगर हो सके, अगर आपके बगल वाला लड़खड़ा रहा है तो उसको सहयोग भी करें। इस तरीके से अगर आप कमाने की कोशिश करते हैं तो आपको हर काम में इंजॉयमेंट आना शुरू हो जाएगा। आज काम को क्या कर रहे हैं ना, जो प्रोफेशनल लाइफ में, आज मैं भी प्रोफेशनल लाइफ से निकला हूं, मैंने उसको देखा है। मैं डिप्रेशन में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं वर्क को एंजॉय करना शुरू कर दिया। अगर आदमी वर्क को एंजॉयमेंट करना शुरू कर देना तो उसको रेस्ट की जरूरत नहीं जी। मैं 18 घंटा काम किया, 18 आवर्स, और मैं कभी नहीं थकता था। नो टायर्ड। क्यों? क्योंकि मैं वर्क को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और आदमी जब वर्क को एंजॉय करना शुरू कर देता है तो डिप्रेशन आएगा ही। तो ये सबसे पहली जरूरी है। ये चीज आएगा कैसे? ये चीज आएगा पॉजिटिवनेस। और पॉजिटिवनेस कहां से आएगा? और पॉजिटिवनेस कहां से आएगा? वो आएगा योग के। गुरुजी आपको कट करने के लिए सो सॉरी, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, दर्शकों को शायद थोड़ी जी बस। हाँ, आप बोल रहे थे। पॉजिटिवनेस लाने के लिए आपको अध्यात्म के तरफ जाना पड़ेगा। आपको वहां समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम घंटा 2 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके अंदर में पॉजिटिवनेस आ जाएगी। और पॉजिटिवनेस आ जाएगी तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को ही एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो फिर आपको डिप्रेशन आने की कोई जरूरत, कहीं दूर दूर तक नहीं आएगा। कभी आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। हैप्पी लाइफ जिए। लेकिन गुरुजी वो लोग जो अभी भी डिप्रेशन में है, जो अभी भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्हें योगा किस तरह से मदद कर सकता है? ऐसे मदद करता है, जो डिप्रेशन में है उनको तो मैं पहले काउंसलिंग करता हूँ। बहुत सारे जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन है मैं उसको निकालता हूँ। उनको मैं एक स्पेशल क्लास लेता हूँ, उनको मैं घर पे बुलाता हूँ, उनके साथ में अपनी खुशियां को शेयर करता हूँ, उनके सारे प्रॉब्लम को सुनता हूँ। जो डिप्रेस्ड है ना, उनकी प्रॉब्लम कोई सुन नहीं रहा है, ना परिवार वाले सुन रहे हैं, ना उनके प्रोफेशनल लाइफ में कोई सुन रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो अकेला महसूस करता है। फैमिली वाले भी उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं,
वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर नहीं पाते हैं, उनसे कंपैरिजन करते रहते हैं, उनके साथियों से उनका कंपैरिजन करते रहते हैं। डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण ये, जब आप किसी को, आप खुद को देखिए, जब आपका कंपैरिजन आपके माता पिता किसी आपकी सहेली से करती थी तो आप ज्यादा परेशान होती होंगी। ये प्रैक्टिकल है जी। एम आई राइट? बिल्कुल। तो आप कभी कंपैरिजन ना करें। अपने बच्चों को अगर सही आप शिक्षा देना चाहती हैं तो आप अपने बच्चों को उसके मित्र से कभी भी कंपैरिजन ना करें। हर एक बच्चे का, हर एक आदमी का यूनिक क्वालिटी होता है, आप उस यूनिक क्वालिटी की प्रशंसा करें जी। अगर उनके जीवन में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो। हर बच्चे में, हर आदमी में, हर इंसान में, हर पुरुष में, हर औरत में बहुत तरह की खूबियां हैं। उस खूबियां को जानने को, पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं वही मेरा मित्र करे और जो मेरा मित्र कर रहा है वो मैं करूं। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक यूनिक पर्सनालिटी हूं, एवरीवन इज यूनिक पर्सनालिटी। बिल्कुल। So why you are comparing with others? I am unique, you are unique, अर्चना is unique. बिल्कुल। हम तीनों में अलग अलग क्वालिटी है। ये तीनों क्वालिटी को मिला करके समाज को सपोर्ट करने की जरूरत है। जी। ओके। तो इस काउंसलिंग से उनको जब मैं बैठाता हूँ तो उनके बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे जो प्रॉब्लम वो अपनी लाइफ में तो वो शेयर करते हैं। शेयर करने से उनका समाधान मैं देता हूँ और वो धीरे धीरे योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर योग करने के लिए कोई तैयार हो गया तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकता। ये मैं 100% बिलीव के साथ कह रहा हूँ। गुरुजी, मेरा इसी से जुड़ा अगला सवाल ये है कि जो इंसान डिप्रेस्ड है वो शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत भी ना हो कि वो खड़ा होकर अपने आप को आईने में देखना चाहे, उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती। तो ऐसा इंसान योग करने की हिम्मत कहां से लाए, कैसे खुद को मोटिवेट करे योग करने के लिए? यस, इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाया है। बाबा रामदेव का बहुत सारे वीडियो है, श्री रविशंकर का है, श्री सदगुरु जी का है। वो वीडियो को उनके परिवार वालों को पहले सुनाने की कोशिश करनी चाहिए जी। फर्स्ट ये इनिशियल स्टेज है। उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उनके जीवन में उत्साह, उमंग जगाना बहुत जरूरी है। अगर वो वीडियो भी नहीं सुनना चाह रहे हैं तो हम जैसे लोग जो अभी ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनसे किसी तरीके से संवाद कराने का कोशिश करें। Definitely they will come out from this problem and after some time he will agree, he will ready to do yoga। और योगा के सत्संग में आ गए तो फिर उनके जीवन में खुशियां आना तो निश्चित। जी बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर मैं एक और सवाल कहूंगी कि आप योगा और साइंस का क्या कनेक्शन है ये हमारे ऑडियंसेस को बता दीजिए, क्योंकि आजकल बिना साइंस के शायद कोई भी चीज को इंसान नहीं मानता है। तो योगा और साइंस का क्या कनेक्शन है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बहुत सिंपल बताता हूँ जी। हमारी बॉडी में और इस पृथ्वी में जी जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो इस शरीर में जी। अर्थ में कितना पानी है? 70 से 75%, 70% हाँ, 70 to 75%। ओके, 75 जी। 70 to 75% इस बॉडी में भी है, बॉडी में भी है जी। तो यू आर द सिंबल ऑफ दिस अर्थ। जी। जो अर्थ में है वो इस पिंड में, जो इस पिंड में है वो इस अर्थ में। इसीलिए बोला जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो जी में है वो इस ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में जी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इस धरती पे अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 एलिमेंट की खोज की है जी। उस 118 एलिमेंट में
सबसे ज्यादा इस शरीर में कौन सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पूछिए कैसे? कैसे? 70 से 75% पानी है। और पानी किससे जी। बनता है? पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। तो इस बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है तो क्या है? पानी और हवा। बिल्कुल। आप दिन भर में कोई आदमी 1 से 1.5 किलो खाता होगा, ज्यादा से ज्यादा। जो बहुत खाते होंगे वो 2 किलो, और हम आप जैसे लोग 1 किलो। जी। और एक इंसान पानी कितना पीता होगा? 4 से 5 लीटर, 3 से 5 लीटर, ज्यादा जी। से ज्यादा बिल्कुल। 24 घंटे में। इस 3 से 5 लीटर का मतलब हुआ 3 से 5 केजी, क्योंकि इसकी डेंसिटी होती है 1। जितना जी। लीटर उतना केजी। और जी। आपको ये पता है कि आप 24 घंटे में कितनी हवा पी जाती है? किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त में नहीं। मिल रहा है आपको। इसके लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं कहीं, इसके लिए आप जी। कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। ये जी। सर्वसुलभ है, सर्वव्यापी जी। है, सर्वत्र है, जी। और ये मुफ्त में है। जी। इसका ठेका भगवान ने ले रखी है, परमात्मा ने ले रखी है, आपको सर्वसुलभ करवा रखी है। जी। आप हवा, भोजन और पानी की व्यवस्था करके अपने घर से कहीं ना कहीं निकलते हैं, बट कभी जी। आप ये सोच करके नहीं निकलते वहां हवा कैसे मिला। कभी सोचा? बिल्कुल नहीं। नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि इसका ठेका हमारे परमात्मा सर्वशक्तिमान ने ले रखी है, इस जी। प्रकृति ने ले रखी है, वो सर्वसुलभ करा रखा है। और आप मुफ्त में ले रही हैं, इसलिए कभी ये सोची नहीं कि आप 24 घंटे में कितनी हवा लेती। मुफ्त की चीज कोई नहीं सोचता गुरुजी, मुफ्त की चीज के बारे में कोई नहीं सोचता। और यही चूक हो जाती है। जो मुफ्त जी। में मिल रही है वो बहुमूल्य है। बहुमूल्य है, बिल्कुल। जो मुफ्त में मिल रही है वो बहुमूल्य है। अगर आपने कुछ पैसा पे कर दिया तो उसकी महत्व खत्म हो गई। अगर आपको मुफ्त में कोई चीज दे दिया गया है तो उसको आप कभी पे नहीं कर सकते, कभी रिपे नहीं कर सकते। जी। वो आपके बस में नहीं है। जी। एक इंसान 17 से 20 केजी हवा पी जाता है 24 घंटे। 17 से 20 केजी? अच्छा, क्या बात है। और उसके लिए किसी को टेंशन नहीं है। उसके लिए ना वो फ्रिज की व्यवस्था करता है, ना कुकिंग की व्यवस्था करता है, ना कहीं खरीदने जाता है, कुछ नहीं करता है। जो सबसे ज्यादा ये बॉडी कंज्यूम कर रहा है उसके लिए किसी को टेंशन नहीं। बिल्कुल। जी। तो ये 17 से 20 केजी जो है ये प्रभु का महाप्रसाद है, महाऔषधि है, जो आपको हर जगह उपलब्ध है। इसको अगर आपने तरीके से लेना सीख गया, इसको अपने बॉडी के अंदर में पचाना सीख गया, तो समझिए आपके शरीर से सारा रोग खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। गुरुजी हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो मुझे आपसे अभी भी और सवाल करने हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल की जो बीमारियां हैं, आजकल में जो बीमारियां चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल। इस दौरान इंसान को जो है वो है सर दर्द, कमर दर्द, पाचन की दिक्कत, खाना ना पचना। तो इन सभी बीमारियों, ये रोजमर्रा की बीमारियां, मुझे लगता है इन बीमारियों से लगभग हर इंसान जूझ रहा है। तो इन बीमारियों के बारे में अगर आप कुछ सुझाव दे दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारे इस बॉडी में 3 इंटेक है जो फिजिकल फॉर्म में है। 3 इंटेक में क्या हुआ? एक भोजन, जी, दूसरा जल, और तीसरा वायु। और चौथा क्या है पता है? जो सॉफ्टवेयर के रूप में आप इंटेक ले रहे हैं वो है विचार, थॉट्स। ओके, ये बहुत बड़ा इंटेक है जी। अगर थॉट्स में अगर आप फिल्टर नहीं लगाए हैं, वायरस अंदर आएगा।
और आपकी बॉडी को पूरी तरीके से वो तहस नहस करके चला जाएगा। तो पॉजिटिव आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर विचार गलत आ रहा है तो आपकी बॉडी को पूरा तहस नहस करके चला जाएगा। क्योंकि विचारों के कारण लीवर, एक अकेला लीवर 500 तरह का मेडिसिन बनाता है जी। 500 टाइप्स का मेडिसिन बनाता है अकेला लीवर जी। ये फार्मास्यूटिकल यूनिट है आपके बॉडी के अंदर में, इसलिए इसका जी। बहुत ध्यान रखा करें, बहुत केयर करने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं ना, सांप को जाकर के वो डाल देते हैं, और वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी जो लाइन लगी थी ना, जैसे ही लॉकडाउन खुला था तो जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी, बताइए, जैसे प्रसाद बट रहा हो, जैसे कोई अमृत बट रहा। जी बिल्कुल। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि मैं बीमार हूं। अरे मेरे भाई, आपने पहले अपना फार्मास्यूटिकल यूनिट को बंद कर दिया, और आप फार्मास्यूटिकल यूनिट बाहर वाला जो बना करके दे रहा है उसके पास आप भाग रहे हो। आप अपने फार्मास्यूटिकल यूनिट को ही ठीक कर लो, उसको क्यों डैमेज कर रहे हो? उसकी दुकान क्यों बंद कर दिया आपने? जी बिल्कुल। जो इंटेक्ट हम ले रहे हैं उसमें आप सजग रहें, जो आप विचार ले रहे हैं उसमें सजग रहें। जी। अगर विचार सही आ रहा है आपके बॉडी में, तो आपका ये जो सारा इंटरनल ऑर्गन्स है ना, सेल्यूला से लेकर के, लोग आज क्या करते हैं, टीवी चालू हो है, लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं। अगर आप इधर खाना खा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है ना, तो आपका सेल्यूला जो है वो रस उस भोजन के साथ मिक्स नहीं करेगा, और वो रस अगर भोजन के साथ मिक्स नहीं हुआ तो ये भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। 100% आप कुछ भी कर लो, फिर आप हाजमोला खाओ, इनो खाओ, जो भी खाना है खाओ, कोई वर्क नहीं करेगा। सो भोजन करते समय पूरी तरीके से खुश नुमा माहौल हो तब भोजन करें। कभी गुस्सा आ जाए तो तुरंत खाना ना खाएं, या बहुत ज्यादा खुशियां हो रही है, कोई न्यूज आ गया है तो इमीडिएट खाना ना खाएं कभी भी, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उस समय उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपका बॉडी जो है वो सेक्रेशन नहीं करेगा। भोजन में सारी सेल्यूला, जो एंजाइम, जो हार्मोन्स इसको मिलना चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, वो सेक्रेशन नहीं होगा, और वो भोजन वहां सड़ेगा। सड़ने के बाद गैस बनेगा, गैस के बाद उसमें पानी मिलने के बाद एसिड बनेगा, और इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। तो भोजन का समय भोजन को देना चाहिए। भोजन का समय भोजन में एकदम लिप्त होकर के भोजन करना चाहिए। जी। जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं, तब कभी आपने मोबाइल पे बात की है क्या? नहीं। तो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा इंसान कर रहा है, उसको प्रसाद चढ़ाने के समय आप एकदम ध्यान युक्त होकर के कर रहे हैं, और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान ने किया है, उसको प्रसाद चढ़ाते समय आपका ध्यान कहीं और रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात? जी जी। वो प्रसाद तो कभी खाया नहीं है आपका, और ये जो प्रसाद खा रहा है उसको आप ध्यान से खिलाते नहीं है, इसीलिए हम और आप सब भटक रहे हैं। जी। इसीलिए हम पूरी दुनिया में भटक रहे हैं। अरे जब आप खाना खाएं तो एकदम ये सोच करके खाएं कि ये हमारा शिवालय है, इसको हम भोग दे रहे हैं। जी। यही मेरा भगवान है, इसको मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूं। जी। आपने जो भी धन अर्जन किया, जो भी पद प्रतिष्ठा आपने पाई है, इस पद प्रतिष्ठा पाने में, इस मान सम्मान पाने में अगर किसी ने सहयोग किया है तो किसने किया? किसने किया? कि मेरा शरीर और ऊपर वाले ने। जी। और हम अपने शरीर की ही ख्याल नहीं रखते, इनकी उपेक्षा करते हैं। जी। इनका आदर नहीं करते। आपने अपने शरीर को लेकर के हम अपने शरीर को भी लेकर के अपने ऊपर भी कभी धन्यवाद नहीं करते कि मेरा शरीर कितना सहयोग कर रहा है हमारे जीवन यापन में, इस धन उपार्जन में, इस मान प्रतिष्ठा के अर्जन में, इस प्रतिष्ठा को अर्जित करने में हमारे मन और हमारा शरीर कितना सहयोग कर रहा है, कभी हम अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप
ध्यान युक्त होकर के बैठें, जब भी बैठें तो खुद को पहले अप्रिशिएट करें, उसके बाद अपने माता पिता को अप्रिशिएट करें, अपने पूर्वज को अप्रिशिएट करें, उनको धन्यवाद करें, और उसके बाद अपने गुरुजनों को और फिर परमात्मा को करें। जी, ओके, चलिए, चलिए फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां। जी जी, बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे दर्शक जो हैं गुरुजी की सारी बातों को नोट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कीमती बातें जो हैं आज गुरुजी हमें बता रहे हैं। इसी के साथ गुरुजी आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि अभी आप जूम कॉल के जरिए भी इस पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान भी आप जूम कॉल के जरिए भी बहुत से लोगों को योगा सिखा रहे हैं। उस जूम कॉल के जरिए लोग आपसे जुड़े हुए हैं, योगा सीख रहे हैं। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, और साथ ही अगर कोई दर्शक जो भी ये शो देख रहा है या बाद में अगर कोई ये शो देखेगा जो आपसे जुड़ना चाहे योग के माध्यम से, जूम कॉल के माध्यम से योग सीखना चाहे, तो उनके लिए भी आप बताएं कि वो कैसे जुड़ सकते हैं, और इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मोस्ट वेलकम है, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं जूम के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8938806295। व्हाट्सएप से मेरे से जुड़े, और उस व्हाट्सएप के थ्रू मैं उनको अपना जूम का आईडी और पासवर्ड बता देता हूँ। जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। अभी मैं आईडी और पासवर्ड बता दूं जी, या व्हाट्सएप जी बिल्कुल, लोग लेना चाहेंगे? आप बता सकते हैं, अभी भी बता सकते हैं। ओके, जो भी लोग, मेरा आईडी है, आईडी नोट कर लें, 939577 जी 0115। जी, एक बार फिर रिपीट करता हूं, 939577 जी 0115। जी, पासवर्ड है 212974। 5:15 बजे मेरा क्लास चालू हो जाता है, ओके ओके, और 7 से 7:15 बजे क्लास एंड हो जाती है। जी, तो जितने भी दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, गुरुजी ने अपना व्हाट्सएप नंबर, साथ ही अपने जूम कॉल की आईडी और पासवर्ड दोनों ही आपको बता दिया है, और अब आप इनके जरिए गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, योगा सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ गुरुजी एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, उसके बाद मैं अर्चना जी से भी एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, यानी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप हमें और हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हमारा फ्यूचर प्लान है जी, योग को घर घर पहुंचाना। जी, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और प्रोफेशनल लाइफ से मैं अभी 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं फिर कहीं ज्वाइन कर लिया हूँ एक कंपनी में, जो एक्सोरा रिसोर्सेज करके। जी, कुछ दिनों के बाद मैं इसको और बड़ा रूप देने जा रहा हूँ, और उसकी ये शुरुआत है। उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए जी बिल्कुल, और लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं फिजिकली तो बहुत जगह से पहुंच नहीं पा रहा हूँ। उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत तेजी से और जगह तक पहुंच पाऊंगा, और उसके लिए मैं पूरी समय निकालने के लिए तैयार हूं। आप जहां जब कहेंगे तब हम तैयार हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, मैं नेचुरल फार्मिंग जी के ऊपर हमने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है ये 5-6 महीने के अंदर। नेचुरल फार्मिंग वो एक तरीका है जो भारत का सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जी, उसके ऊपर मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। जी, बाढ़ से मुक्ति दिला सकता है नेचुरल फार्मिंग से, उसके एक तरीके हैं, इसको मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक हमारे वैज्ञानिक है महाराष्ट्र के श्री सुभाष पालेकर जी, उनके प्रोग्राम को मैं अब आगे बढ़ाना चाहता हूं, और साथ में योग को। जी, उस नेचुरल फार्मिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर आज भारत का बहुत नीचे चला गया है।
हमारा सॉइल हेल्थ बहुत खराब हो गया है। जी बहुत ज्यादा केमिकल फार्मिंग लोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस फार्मिंग के माध्यम से इन सब चीज को हटाया जा सकता है। अगर आपने केमिकल और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को अगर आपने बंद कर दिया तो आपके हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, उसमें बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट आ सकता है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकता है। आज जो आप फूड ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, वो सब पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है। ओके उससे मैं मुक्त कराना चाहता हूँ, इस अभियान को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है जी और प्रैक्टिकली मैं इसको करके दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि आपका ये फ्यूचर प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। जैसे कि अभी तक आपने अपने योग में इतनी कामयाबी हासिल की है, उसी तरह आपका जो ये आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो भी जरूर सफल होंगे। इसी के साथ अर्चना जी, कमिंग बैक टू यू, you know, we have last 5 minutes and we would like to end this show with you giving our audiences a few parenting tips and also singing few lines of any motivational songs, either Hindi or English. Sure. Yeah. So actually, parenting is a very broad topic, but since you're short on time, I'll just touch on the main topics, and very soon I'll come up with a YouTube video and a podcast on parenting. And for now, I'll just like to say that children, they are a gift to us from God. They are not our personal property to be mishandled. They are not with us forever. They have been given to us for some time so that we can nurture them, take care of them, mold them, give them values, make them into good human beings, make them financially stable, emotionally stable, mentally stable, physically stable. And Mahatma Gandhi said, be the change you want to see in the world. We need to be role models for our children. We need to practice before we preach. And the children, they learn by observing and not much by telling. We have to do positive motivation. We have to follow positive motivation more than negative. We cannot treat children. They're not dogs that need to be trained with consequences. We need to mold them. And whatever we want to teach them, first we need to incorporate that into our own life. Yeah. For example, if you want your child to have less screen time, to watch iPad, iPhone less, you have to turn off your cell phone first. You have to spend more time, quality time with your child, and not just trying to teach your child. Try to spend some quality time, have some indoor games, some outdoor games, go out for walks, and you know, when you become a friend with your child, that is when you can gain your child's confidence, and that is when your child can relate to you and will share his problems with you, and that is when you can guide your child, and that is when he will follow you. And by doing this, you can help your child to save him from depression, from getting into bad company, and a whole lot more things. So stay tuned. I'll surely come up with a video with all the necessary details. And now I'll sing a song for you. Yeah, sure. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. And for the ones who don't understand English, we are the world, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. So guys, please join us in our mission to spread. So please join us in our mission to spread positivity and hope. Please join Uplift International on Facebook. Please join our online Uplift volunteering team.
And my email ID is uplift626@gmail.com. You can email me, and in either way, if you want to volunteer, or if you have any sort of problem, you need guidance, you need motivation in life, we are there. And also, if you need any information about Guruji, you want to get in touch with him, you can contact me. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Archana ji, for joining us and for sharing such beautiful things with us and our audiences. Thank you so much. Thank you. And गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो पर आके हमारे दर्शकों को इतनी मूल्यवान बातें बताई जो शायद उन्हें कोई डॉक्टर भी ना बता पाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हम आपसे जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया सेवा करने का, समाज को सेवा करने का, राष्ट्र को सेवा करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को हमारे तरफ से हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप वॉचिंग S Cube TV।